कि हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट विदाउट हार्म, बल्कि द रियल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट न्यू वी मस्ट जनरेट फ्रॉम व्हाट वी हैव एक्सट्रैक्टेड। जो हम निकाल रहे हैं उससे क्या हम जनरेट कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इज इट जस्ट मोर फैक्ट्रीज? इज इट जस्ट मोर एक्सट्रैक्शन विदाउट विथ बेटर टेक्नोलॉजी? इज इट ओनली मोर इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, द रियल न्यू दैट झारखंड मस्ट जनरेट इज साइंटिफिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस, स्टेम टैलेंट, बादल सर बता रहे थे, रिसर्च इनोवेशन, AI इनेबल डेटा ड्रिवन थिंकिंग। जो हम जनरेट कर रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे क्या जनरेट कर रहे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़ा सवाल हो गया है। सो झारखंड मस्ट नाउ ट्रांसफॉर्म नेचुरल कैपिटल इनटू नॉलेज कैपिटल। हम लोग फिजिसिस्ट हूँ, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम लोग फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो न तो डिस्ट्रॉय होता है न क्रिएट किया जाता है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। केमिकल एनर्जी जो है कोयला से निकलता है, दैट बिकम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट बिकम्स से लाइट हीट बना लेते हैं। सो द वैल्यू लाइज नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म अलोन बट इन हाउ इंटेलिजेंटली वी ट्रांसफॉर्म इट। सो झारखंड टुडे इज रिच इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी which is energy logged in coal, minerals and natural resources. The challenge before us is not merely to extract that energy carefully, sustainably, but to transform into another form, the energy of knowledge, the energy of science and innovation, the energy of skilled human minds. So that is the redefined meaning of sustainability for Jharkhand today. Similarly, the other aspect of this seminar is about inclusiveness. And again, I think that this inclusiveness should also be rephrased or redefined. Historically, when we talk about inclusiveness, we usually define it as development for everyone, especially for those who have historically been left behind. Inclusion of tribal and indigenous communities, support for women, rural, poor, marginalized section, equitable access to education, healthcare, these all we talk about inclusiveness. In essence, we interpret inclusiveness as ensuring that no section of society is excluded from progress. That understanding was necessary. It addressed long-standing deficit, but let me say this very carefully. That definition of inclusiveness is no longer sufficient. That is useful, but no longer sufficient. Now we need to redefine inclusiveness. The question today is no longer only about access to the system. पहले बात था कि इंक्लूसिवनेस में हम लोग एक्सेस देते थे, जिनको मिला नहीं उनको एक्सेस देते थे। आज सिर्फ एक्सेस देना काफी नहीं है। The real question is how effectively people are enabled to participate, perform, and progress within the system. So, is inclusiveness merely about physical access to school, admission to institutions, enrollment, number, and coverage? No. The true inclusiveness, especially in today's knowledge, means capability, not just access, participation, not just presence, voice, not just visibility, agency, not just assistance. So for Jharkhand, I would like to conclude because I have not much time. I mean, how do we translate these ideas into action in Jharkhand? So we need to build a strong STEM and scientific temper, research, innovation, and technology for local problems, preparing people for just transition. I mean, we need to be prepared for the changes being happening around. Reskilling for renewable and green technologies, aligning our ITIs, polytechnic and universities with emerging sectors, ensuring. Finally, I would like to conclude that Jharkhand's challenges today is not lack of resources. It is a challenge of transformation. Transformation iska the transformation from natural capital to knowledge capital, transformation from access to capability, from inclusion to participation, and from growth to long-term resilience. The future of Jharkhand is not written in cold seams, but in scientific thinking, technological confidence, and empowered human potential. That is the requirement. Thank you. इस सत्र के अध्यक्ष पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी का आगमन थोड़ा देर हुआ, जिसके कारण हम लोग स्मारिका
इस कार्यक्रम से संबंधित प्रोसीडिंग्स और रामचंद्र कुमार के द्वारा विरचित ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पुस्तक भेंट नहीं कर पाए। मैं रामचंद्र कुमार को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आकर के हमारे विशिष्ट अतिथि को ये पुस्तक भेंट करें और ताकि उनका आशीर्वाद, उनका प्रोत्साहन इन्हें मिल सके। और साथ ही साथ डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह सर को के लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें स्मारिका, प्रोसीडिंग्स और उल्लिखित पुस्तक भेंट करने का कार्य करें। भैया क्या अब मैं इस सत्र के अध्यक्ष पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख जिसे आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य हम लोगों के बीच रखें। आरएसटी महाविद्यालय झरिया बेलगड़िया धनबाद झारखंड। आज ये सम्मेलन में, ये कार्यशाला में मंचासीन प्रबुद्ध जन और इस सभागार में बैठे शिक्षक लोग, शिक्षिकाएं, छात्र और छात्राएं, सबों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। बोलिए जोहार। चलिए, मैं सोचा यहाँ बहुत तगड़ा तगड़ा आदमी है, मैं तो टोटल 5 किलो का आदमी हूँ, क्या मैं कुछ बोल सकूँगा? भय तो नहीं लगेगा? पहले शब्द मैं शुरुआत करता हूँ कि रामचंद्र और मुंडा जी मुझे निमंत्रण देने मेरे घर गए थे इतना दूरी से। मैं उनका ये नए साल के उपलक्ष्य में मुबारकबाद करता हूँ, सबों को शुभकामना देता हूँ। और इस पंक्ति में मैं एक छोटा सा इस विषय में छोटा सा बात कहता हूँ। मैंने कहा हूँ कि नई साल की उपलक्ष्य हो या कोई भी हो, प्रेम, कबीरदास जी बोले हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने भी नागपुरी में कहा हूँ, आए गए नवा साल, प्रेम धने माला माल, प्रेम से जीवरे भाई, प्रेम पर रोक संगे जाई, प्रेम से जीवरे भाई, प्रेम बना के रखिएगा। मैं एक छोटा सा बात कहता हूँ, किसी का बचपन में बच्चा का या बड़े लोग का इन दिनों 10-20 साल से बहुत प्रभावशाली से हर साल काम होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। तो मैंने बोला कि केक काटते हैं आप और हैप्पी बर्थडे टू यू करके से ताली बजाते हैं। आप अपनी भाषा मुंडारी में, नागपुरी में हो, खटिया हो, खड़िया, कुरमाली, पहाड़ी में क्यों नहीं केक काटने की बिफोर आप अपनी जिंदगी का एहसान आभारी क्यों नहीं मनाते हैं? मैंने कहा
कि हैप्पी बर्थडे टू यू छोड़ दो और तुम अपनी जिंदगी का आभार बनो, एहसानमंद बनो। जिनगानी रे तो के जन्म जोहार हमर जिनगानी, दिले झकमक रूप सिंगार हमर जिनगानी। उमड़ल नदिया से कर दिले पार मुखे जिनगानी, तो के जन्म जोहार हमर जिनगानी। ये कह के अगर आप केक में छुरी चलाते हैं, मैं सोचता हूँ आपको बहुत आनंद मिलेगा, लगता है हमको ऐसा। चलिए मैं अभी आपको एक छोटा सा और बात बोलूँगा। चरित्रता मनुष्यता की पहचान है, और जो मन वचन कर्म से चरित्रवान है वही दुनिया में महान है। चरित्र। फ्रांस के लोग जब शराब पीता है, नशा हो जाता है, तो बहुत गाता बजाता नाचता है। और ब्रिटेनियन लोग शराब पीता है, नशा हो जाता है, उसको अनुभव होता है कि हमको नशा चढ़ गया है, तो साइलेंट हो जाता है, चलता भी नहीं है जब तक कि नशा नहीं उतरता है। इतना तो होश रखता है। डच समुदाय के लोग जब शराब पीता है, नशा हो जाता है, तो रुचि से अधिक खाना खाता है डच समुदाय के लोग। और इन दिनों भारतीयों में एक ऐसा नशा चढ़ा है कि जो तरह तरह की नशा जब पीता है, नशा जब हो जाता है, तो कुछ करे या ना करे अपनी पत्नी को जरूर मारता है। तो परिवर्तन लगता है, ये भी परिवर्तन शायद सभ्यता की हो रहा है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। चलिए मैं आगे आपसे दो बात करूँगा। आप लोगों के यहाँ मैं आया हूँ। विनोद बिहारी महतो जी से मेरा बहुत अच्छा जान परिचय था। उन्होंने पहली मुलाकात उनसे मेरी गिरिडीह का भिंडरा गांव में, भिंडरा, तब गिरिडीह में भिंडरा था, और जब वो बोकारो जिला बना तो भिंडरा गिरिडीह से कट के बोकारो में जुट गया। मैंने पहला बात बोला कि मैं 5 केजी का आदमी, शायद ऐसा घटना ना हो। मुझसे इतना खुश विनोद बिहारी महतो हुए थे कि जब उन्होंने मुझसे भावुक होके मिलने के लिए, गला मिलने के लिए चाहा, तो संभल नहीं सके और वो गिर गए थे, मुझे लेके भी गिर गए थे। और ये बात मेरे डायरी में लिख के रखा हुआ है, इतना प्रेम था। आइए मैं अपनी प्रारंभिक गुरु के बारे में बोलता हूँ। प्रथम गुरु माता पिता रक्त बूंद के दोनों दाता। प्रथम गुरु माता पिता और रक्त बूंद के दोनों दाता, और दूसरा गुरु माने दूसरा गुरु आप माने चाहे ना माने, मैं तो मानता हूँ। जब मेरी माँ मुझे जन्म दे रही थी, दर्द से पीड़ा से बेचैन थी, तो मेरे गांव के उस मोहल्ले के एक औरत आई, महिला आई, और मेरी माँ का पीड़ा को में भागीदारी निभाई। उसने मेरी माँ की बदन शरीर को सहलाई, और मुझे मेरी माँ उसका सहयोग से मुझे धरती में उतारी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? गांव में परंपरागत भाषा में उसको हम कुसराइन कहते हैं, और सभ्य भाषा में उसको हम दाई माँ कहते हैं। कभी हम उसको गुरु के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन मैं तो कहा हूँ अपने गीत में कि प्रथम गुरु माता पिता रक्त बूंद के दोनों दाता, और दूसर गुरु डंगरीन माता गर्भ से मौके टारे। तो हम उसको भी सम्मान की नजर से दें। अभी आपने झारखंड की बहुत बातें किया। झारखंड का मतलब है झाड़ झंखाड़ जंगलों से भरा क्षेत्र, और इसीलिए मैंने अपने गीतों में कहा है कि अति सुंदरी का जात नहीं और अति कारीगर को भात नहीं। जो बहुत सुंदरी है उसको ये समाज आनंद से जीने नहीं देता है, और जो बहुत कारीगर है
बहुत बढ़िया हर काम को करता है, तो वो आदमी के बच्चे भूख रह जाते हैं, क्योंकि उसको काम के लिए बुलाइएगा तो जितना काम नहीं करता है उससे अधिक वो डायरेक्शन देता है, आपका काम नहीं होता है, इसलिए उसको लोग खोजता नहीं है। तो हमको ऐसा भी नहीं बनना है। ये सब महीन महीन बातों को हमको अपने आप में अध्ययन करना है। चलिए, आप पढ़े लिखे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बधाई करता हूँ 9 वर्ष का भी और आपकी शिक्षा को भी, और आप जो ये कार्यशाला में हमारे लोग को मार्गदर्शन कर रहे हैं उस बात को भी। मैंने जो चरित्र देखा हूँ उस संबंध में एक बात कहा हूँ, साक्षर पढ़ा लिखा। तो हमने साक्षर को उलट के लिखा तो रक्षसा हो गया। तो मैं पढ़े लिखे लोग से विनती करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, साक्षर तक ही रखिए, व्यवहारिक आपका ऐसा ना हो कि आप राक्षस बन जाइए। साक्षरा उसको उलट के लिखे तो राक्षसा, बहुत बड़ा राक्षस। मैं पुनः आप लोग से विनती करता हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारे लोग से, कि आप साक्षरा रहिए लेकिन राक्षसा मत बन जाइए। हमारा भूखा प्यासा एक नौजवान पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है, जंगलों की तरह जो शहर में आ नहीं सकता है, तो मजबूरी में वो किसी ठेकेदार को लूटता है, किसी के यहाँ डकैती करता है किसी का, तो हम उसको कहते हैं कि देशद्रोही है, मानवता का दुश्मन है, ऐसा कहते हैं और उसको हम इनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन पूजा सिंघल जैसा महिला को हम एक बच्चा की तरह चुम्बन लेते हैं, अरे उसको भी इनकाउंटर कर दो यार, वो भी तो मानवता का दुश्मन है, वो भी तो देश की एकता और अखंडता। अब सिर्फ पूजा सिंघल नहीं, ऐसे लाखों हजारों। मैं एक बात और बोलने के पहले क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सत्य है इसलिए। झरिया में एक राजा था या नहीं था, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में एक राजा था, वहाँ से 50 किलोमीटर में एक तीसरा राजा था। गांव गांव में राजा नहीं थे, तो झूठी या सच्ची उनकी बातें शिकायत करता था कि राजा का राज में बहुत जुल्म है। तो याद रखिए, अभी जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म राजाओं के टाइम में हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। आइए हम शिक्षित लोगों को, इस समाज को ऐसा मार्गदर्शन दें कि भारतीय समाज कहने के लिए भर विश्व गुरु ना बने, कहने के लिए नहीं, व्यवहारिक रूप में भी जीवन ऐसा। एक जवान बेटी अगर 2 बजे रात को अकेला मुसीबत में रास्ता चल गया तो हम मान लिया कि भारतीय समाज वाकई गुरु के लायक है। लेकिन आज तो बेटियों को रास्ता चलने नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब झारखंड की पहचान जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला से है, झाड़ झंखार से है। आप लोगों ने सुना होगा किसी के मुंह से, मैं तब जन्म नहीं लिया था, लेकिन मुझे एक व्यक्ति कहा था, उस व्यक्ति का नाम कन्नी लाल साहू था, और वह व्यक्ति का रांची में बंधु विलास प्रेस था। मेरी पहली मुलाकात 1962 में उससे हुई, तब मेरा उम्र 13-14 साल उम्र था। तो मैंने झारखंड का एक पतली सी किताब छपवाने गए थे झारखंड के गीतों को, तो उसने कहा, अरे छोटा सा लड़का इतना बड़ा बात बोल रहा है, लिख रहा है और कर रहा है। उसी ने मुझे अपनी बात के क्रम में ये बात निकाला कि 1940 में रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस महाधिवेशन हुई थी। उस समय हिंदुस्तान के सारे विद्वान राजनीतिक लोग आया था। गांधी जी आए थे, राजेंद्र बाबू आए थे, नेहरू जी आए थे, मोहम्मद अली जीना आए थे, वगैरह वगैरह सब आए थे। सभी अपनी विचार दिया था, और वहाँ झारखंड अलग राज का प्रणेता, संस्थापक
जयपाल सिंह मुंडा भी गया हुआ था और उसी कन्नीलाल साहू के साथ गया था। तो जयपाल सिंह मुंडा को इस टाइम प्रेरणा मिला जब सभी अपनी अपनी बात रखा, और जब मोहम्मद अली जीना खड़ा हुआ अपनी बात देने के लिए, तो उन्होंने चिल्ला के लंबी हाथों से कहा था, रियली इट इज झारखंड। तो जयपाल सिंह मुंडा को उस बात से प्रेरणा हुआ कि केंद्र के बड़े विद्वान लोग भी इसको झारखंड मानता है, और उसी दिन से वो प्रेरित हुआ और झारखंड राज का नींव उसी ने गाड़ा है। विनोद बिहारी महतो ने, मैं नहीं, शिबू सोरेन नहीं, 1939 में उन्होंने ही इस राज को झारखंड राज के नाम पर काम किया, और उसको हम लोग भूल जाते हैं। आप लोग से मैं करबद्ध एक प्रार्थना करता हूँ, जब विलय किया था 1963 ईस्वी में, तो बड़े बड़े विद्वानों के बीच में है मैं लड़का जिसका उम्र मेरा मात्र 16 साल था। हमने कहा था, विलय किया था तो, अरे बेच ले मुर्गा छाप, दुयो गाले खाले थाप। तुमने मुर्गा छाप बेच दिया, झारखंड को बेच दिया। बेच ले मुर्गा छाप, दुयो गाले खाले ताप, पर के बना ले बनिहार, काटी बन झार, व्यापारी के दे दिले उपहार। सबके सामने बात बोला था। हमको इतना डर है इस राज्य के प्रति। अभी झारखंड राज्य छिन्न क्यों है, उसको तो जानना है। जब 1970 के बाद इंदिरा गांधी इसको, कोयलवरी को, प्राइवेट को राष्ट्रीयकरण किया, लूट हो गया। जब जंगल को राष्ट्रीयकरण किया, पूरे जंगल लूट गया, कट गया, मिट गया। जंगल में रहने वाले प्राणी गांव आ गए। इन दिनों गांव के लोग को मार रहे हैं जैसे हाथी। छिन भिन हो गया। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो इतना लूट हो गया, पता चल गया कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या अपना पड़ोसी का दुश्मन बनने जा रहे हैं। अगर जब तक हम इन महीन बातों को अध्ययन नहीं करेंगे, समाज में खड़ा नहीं होंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक यह राज्य, ये देश विश्व गुरु नहीं हो सकता है। हम लोग को संकल्प करना चाहिए, मानव है तो मानवता को मजबूती से रहने दीजिए। अभी 100 आदमी कमाने खाने दूसरे राज्य से आए हैं झारखंड में, और वो मुस्लिम समाज है, तो उन्होंने एक मोहल्ला बना लिया और उसका नाम इस्लामिक नाम रख दिया गौस नगर। दूसरे जगह से हिंदू भाई लोग आए कमाने खाने, तो एक मोहल्ला बनाया ये हनुमान नगर। इस तरह से सारे लोग, ईसाई समाज के लोग ख्रिस्त नगर, जेरूसलम नगर, सारे लोग बना के और झारखंड को मिटा दिया इसकी। अरे झारखंड का नामकरण क्या है? जंगलों से, पेड़ों से, आंबा टोली, बर्फ टोली, पीपर टोली, कटहर टोली, ये पेड़ है ना, ये पेड़ों से। अब तो ये धार्मिक नाम हो जा रहा है, ये तो मिटा रहा है। पहाड़ों को पूजा करते हैं, पेड़ों को पूजा करते हैं, उसको अब हम तिजारत कर रहे हैं और आदर्श जीवन की परिकल्पना करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार आदमी हैं, इसलिए मैं झारखंड के बारे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 300 गीत मैं इस राज्य के लिए लिखा हूँ। आज मैं जो आपके इस सभागार में उपस्थित हूँ, ये मेरी जिंदगी का 9817वां मंच है। याद रखिए, मैं आज 917 मंच में खड़ा हूँ। कल मुझे लोहरदगा जाना है और इन्हीं तर्जों को मैं देखता हूँ तो शाम को फुर्सत मिलता है तो गीत लिखता हूँ, गाता हूँ। आज भी लेकिन जब मैं 3:30 बजे भोर में जब थोड़ा लघु शंका के लिए उठा और वहाँ से आया तो कंबल ओढ़ के गीत गुनगुना रहा था। ये मेरी दिनचर्या में शामिल है।
मुझे आप लोगों ने, आप लोगों की सहानुभूति, आप लोगों की आशीर्वाद ने मुझे पद्मश्री दिया। मुझे विद्वज्जनों ने मेरे बारे रिसर्च किया कि मधु मंसूरी हंसमुख शिष्ट मंच के जन्मदाता है। आप लोगों ने मुझे कहा कि मधु मंसूरी सांस्कृतिक मंच के राजकुमार है, इसका सम्मान आप हमें दिया। प्रयागराज यूनिवर्सिटी मुझे 2022 में कहा कि पद्मश्री मधु मंसूरी नागपुरी भाषा में आधुनिक राग रंग के जन्मदाता है। 1991 ईस्वी में सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता मुझे पूर्वी भारत के लोक संगीत का VIP कलाकार का सम्मान दिया। इस तरह मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 75 सम्मान मुझे मिला हुआ है। और आप लोगों की प्यार एक बड़ी सम्मान है। मैं आभारी हूँ आप लोगों का। और जिन विषयों से मैं चर्चा किया उसमें छोटा सा झारखंड के संदर्भ में एक गीत गाऊंगा। जब मैं 1972 में इसको लिखा था, और उस समय हमने इसको झारखंड का कोरा नहीं कहा, मैं उसको नागपुर का कोरा कहा, इसलिए कि आधिकारिक रूप से झारखंड नहीं बना था। अगर आप कभी इस गीत को गाएंगे तो आप झारखंड का कोरा गा सकते हैं। मेरे तरफ से दिल से समर्थन है। चलिए तो मैं आपको ये नागपुर का कोरा गीत सुनाता हूँ। कोरा माने समझते हैं? गोद, माँ की गोद में बच्चा रहता है ना, उसी तरह से हम झारखंड की कोरा में है, झारखंड की गोद में है। और इस गोद में हम क्या दिखता हूँ उसी संदर्भ में मैंने खान पियान पहरावा, लड़का लड़की, हंसी खुशी, मेला जत्रा, इन सारी बातों को पहले मैंने कहा था ना। गुरु झारखंड की हर परंपरा, करम जीत तीजा, करम परब, सरहुल, तीज, होली, दिवाली, अखड़ा, जतरा, मेला, इसको तो मैं गुरु के रूप में मानता हूँ। और उसी से मैं जो भी सीखा हूँ उसी से सीखा हूँ, आपसे सीखा हूँ। आइए मैं नागपुर का कोरा। अब तो मेरा उम्र 78 ईयर्स है। एक नौजवान की तरफ तो शायद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि नौजवान से थोड़ा अधूरा भी तो मुझे ऊपर वाला ताकत दे। नागपुर कर कोरा, ए नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पाखसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो, भर लिखो पाखसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। चल रे रानी चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा चल, खेल रे खेल घसरी खेल, बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहर दगा मेल, धर 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 धारिया चला, उड़ेला बगरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पाखसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। बाप के तोलो में आशीष बाटे, सुन रे सुन बतिया मान, अपन घरे यतई काम धर तो कोड़ी छोड़े असाम, ठेर की छोड़ी पतुर बिछे झुगल छोड़ा, गुलरी गोरा नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा,
भर लिखो बाकसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। अगला पंक्ति है, गिर के घटा खुखड़ी उठे बास खोर करिल फूटे महुआ संगे ते तरिछिया सोना लखे सिया भूया होड़ुंग देखी पेलो धुरे टूटल प्रीति फिर से जुड़े सरग सा बसेरा। झारखंड कर कोरा नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा। भर लिखो बाकसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। भर लिखो बाकसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। मन मजीरा झनकी उठे मधुगंधे धमकी उठे कोयलिकारो देव नदी हलक मलक उलट पलट देखा रे देखा मुक्ति देवे सोबर नेखा देखा रे देखा। होड़ समझो ना घाघ गाते चले प्रेम के राग जीरा घाघर कुड़ी तीरे बास ककाई मुड़ी चिरे दे तो रानी एक जबान आज के पेड़ में हेरा ढेरा कल बेटा मुँह ये है बेरा। झारखंड कर कोरा नदी नाला टका टुकू मन रे पतरा। भर लिखो बाकसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। भर लिखो बाकसी फूल दीदा समय झूला झूल रे लो। मुझे दो बातों से प्रेरणा मिला इस गीत को लिखने में। एक, आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, महाकवि तुलसीदास जी एक अध्याय लिखे हैं जनकपुर वर्णन। रामायण में लिखा है जनकपुर वर्णन। उन्होंने कहा है कि सुमन वाटिका बाग बने और विपुल विहंग निवास, फूलत फलत शुक्लबीत और चहुपुर पास। धनिक बनी कर बैठे समाना सकल वस्तु संपत्ति ले नाना। गुंजत मंजू मत्र श्रृंगा कुंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विक्षे बन जाता विविध समेत सदा सुखदाता। मुझे प्रेरणा मिला। दूसरा प्रेरणा, हम लोग स्वयं जब लड़का उम्र थे तो चट्टान जो ढलाई होता था उसमें हम लोग ऐसे घसरी खेलते थे। इतना घसरी खेलते थे बकरी गाय बैल चराने में कि पैंट को फाड़ देते थे इतना। और उसी से गाड़ी लोहरदगा मेल, बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहरदगा मेल। और इस गीत पर कई छोटा मोटा फिल्म बना। स्वयं मेरे बारे 59 मिनट का एक युग पुरुष के नाम जो सम्मान मुझे मिला है, नागपुरी के युग पुरुष, वो एक 59 मिनट का एक फिल्म भी बना है। आइए अब मैं आपको, आप लोग ऐसे बहुत सुबह से बैठे हैं, मैं एक गीत और सुनाऊंगा जो यहाँ आते के साथ मुझे बोला गया। सर उस गीत को जरूर सुनाइएगा। गांव छोड़ब नहीं, ये मैंने क्यों लिखा, हम लोग दो आदमी क्यों ऐसा लिखा। 20,500 एकड़ 20,500 एकड़ जमीन एचईसी के लिए लिया गया। आज एचईसी मिट गया। 32 गांव उजाड़ा गया था, विस्थापित किया गया था। अब कहाँ मिट गए उसका कोई खोज खबर नहीं। और जिसका कुछ नहीं था वो आज किसी एरिया का जागीरदार बना हुआ है। क्या मुझे उनका दर्द को अपनी गीतों से लिखने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने इसलिए लिखा। अरे गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं
और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं। अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले और जंगल काटी